My senior colleague, Commissioner of Police, Ahmedabad City, Mr. Anupam Gehlot, IGP, Ahmedabad Range, Mr. Raghvinder Wirtz, Mrs. Wirtz, IGP Bipin Ahire, DDO, Ahmedabad, Mr. Viday, SP, Ahmedabad Rural, Om Prakash Jat, his better half and the SP Technical Services, Suman Nala, my Commandant, Group 20, Megha Devar, all senior officers, DYSPs, inspectors, sub-inspectors, अहमदाबाद रूरल ना तमाम पुलिस ना जवानों हमारा साथियों, the officials from the Honda India Foundation, Shri Vinay Dhingra, Mr. Kuldeep Khare, Mr. Taneja, Mr. Sandeep Ji from Tata, Mr. Harada from Vitlapur plant, Mr. Satish Mehta, Mr. Rohan Khatre, the members, the officers from the other agencies and friends. Let me begin with congratulating the Honda India Foundation and the Ahmedabad Rural Police, including the IG Range, the SP Ahmedabad Rural, Om Prakash, for initiating such a good and a very contemporary and a very required initiative. You know, it has been 31 years that we have come into the service. For me, it is like a homecoming because 28 years back, I was ASP Dholka, and at that time, there was only two subdivisions in the Ahmedabad rural. One was Dholka, the other was Viramgam. And at times when the DYSP Viramgam would go on leave, the charge automatically would come to the SDPO Dholka. So at times that I would visit Viramgam, and only last year when there was a bandobast of Honorable Prime Minister at the Maruti plant, that I again got the opportunity to come and visit the Group 20. तो इतना वर्ष पछी फिर से एक बार ग्रुप 20 की मुलाकात बहाने में विरमगाम आया, और तब के विरमगाम और अब के विरमगाम में रात दिन का अंतर हो गया. It's a changed, completely changed place. आप उसको शायद अब पहचानो भी नहीं कि वो 20 साल 25 साल पहले वाला विरमगाम और आज के विरमगाम में कितना फ़र्क है. तो last 31 years that we have been in service, और जब भी कभी ये पुलिसिंग के बारे में डिस्कशंस होते हैं, लोक दरबार होते हैं, मीटिंग्स होती हैं with the senior leaders and all, the number one complaint always ये ट्रैफिक के विषय में होती है. It's always about the traffic. We probably have evolved in 31 years, as Vipin said. You know, the roads have come up, the strength has increased. हमने traffic police stations खोल दिए, traffic चौकीज खोल दी, but still to date we are struggling with the traffic. The problem has gone enormous. You know, as Om Prakash had mentioned in his speech, that the Honda is the only company which is doing the CSR, but probably, sir, you own it because you are the one who has got the most motorcycles on the road, right? We remember I was in Surat, city where just Anupam has come from, and one of the major crime in Surat was the vehicle theft, and more than 50% of the vehicle which was stolen was Hero Honda. It's only because you had such a large percentage of vehicle contribution to the road. You know, suddenly, well, it's like in last 20-25 years, not only as CP Ahmedabad has mentioned, every third person is using the road. You know, there's an explosion of vehicles. रोड ऊपर गाड़ियों की एक संख्या में एकदम भरकम बधारत है ये. मतलब it's like an explosion on the road. One household I would remember would have 2 vehicles at the most. They will have a 2-wheeler and a 4-wheeler. अब आज 2-2, 3-3 2-wheeler होते हैं, 4-4 4-wheeler होते हैं. हर इंडिविजुअल के पास एक गाड़ी होती है और सब गाड़ियाँ का यूज़ हो रहा है, सब गाड़ियाँ उसको इस्तेमाल करते हैं. हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. दैट इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल. वी कांट कंट्रोल द पॉपुलेशन.
you know, it is a nation of 140 crores. We just can't, like, Ahmedabad population is touching almost 1 CR. Is it? आपके सूरत में शायद 80 lakhs हो गए, 90 lakhs, and that is the city population. जो peripheral population है, जो city में आ रही है जा रही है, वो तो अलग है. When we are talking about the Commonwealth Games, we are looking at a potential Olympics Games. We do not know how many numbers we would add in those period of time. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मल्टीपल होने ही वाली है. हम कितना भी कंट्रोल कर लें कि गाड़ियाँ बढ़ने वाली हैं, टाइप्स ऑफ व्हीकल्स विल now suddenly is like what Bipin was mentioning about the town planning, कि जब टाउन प्लानिंग होती है तो उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता है. 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा. एक, हम लोग जब राजकोट में थे तो वहाँ पे टीपी पड़ी, और टीपी के बाद जब हमने उसको इवैल्यूएशन करा उस एरिया को, तो मालूम पड़े उस एरिया में 20,000 न्यू फ्लैट्स वर कमिंग अप. अब 20,000 अगर घर वहाँ बन रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि कम से कम 80,000 लोग रहेंगे, और 80,000 लोग रहेंगे तो कम से कम वहाँ पे 30-35 हज़ार गाड़ियाँ बढ़ेंगी. अब उन 30-35 हज़ार गाड़ियों का आपके उस रोड के ऊपर ट्रैफिक का इम्पैक्ट क्या होगा, वो हमने कभी असेस नहीं किया. वी नेवर असेस्ड कि आसपास की रोड्स जो है, पेरिफेरल रोड्स हैं, उसके ऊपर क्या ट्रैफिक रहेगा, ट्रैफिक का फ्लो क्या रहेगा, कहाँ पे पोटेंशियल ट्रैफिक के ब्लाइंड स्पॉट्स बनेंगे कि जो है ना आपको हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे. हमने कभी असेसमेंट नहीं किया. ऐसे ही जब यहाँ पे हम लोग 2010 तक, मैं महसाना एसपी था, उससे पहले अनुपम साहब भी है ना एसपी रहे. बेचरा जी के बाद बिल्कुल सुनसान जगह थी, कुछ नहीं था. रात को वहाँ नाके लगते थे, क्योंकि ऊंझा के मार्केट यार्ड के अंदर सुरेंद्र नगर और राजकोट की तरफ से वहाँ जीरे की गाड़ियाँ जाया करती थी, और हर बार ये होता था कि रात को कोई टाट पटरी काट के और जीरे की है ना गाड़ियों की चोरी कर लेता था. तो उसकी वजह से वहाँ रात को नाका लगता था, नाका लग के गाड़ियाँ इकट्ठी करी जाती थी, कॉन्वॉय में गाड़ियों को पास किया जाता था. कुछ भी नहीं था. अब सडनली वहाँ पे इतनी सारी फैक्ट्रीज आ गई हैं, इतना सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया है. उसकी वजह से सिर्फ 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पे चेंज नहीं आया है. आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ की है ना, आपकी ट्रक्स आने लग गई हैं, वेंडर्स की गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं, उस पर आपके ट्रेलर्स चलते हैं. सडनली मैं जो आपको कहा कि 20 साल के अंदर 25 साल में ये विरमगाम बदल गया है, उसका एक ये भी कारण है कि इतना बड़ा ट्रैफिक मूवमेंट अब यहाँ पे होना शुरू हो गया, जो पहले नहीं था. उसकी वजह से और सोसाइटीज़ बनी, और लोग आए, वेंडर्स आए, कंपनीज आई, इंडस्ट्रीज आई, और वो पूरे एरिया को अब एक और कंजेशन की तरफ ले जा रहा है. हम करेंगे 2 लेन्स को हमने 4 लेन बना दिया, 4 लेन को हमने 6 लेन बना दिया, ओवर ब्रिजेस बना दिए, फ्लाईओवर्स बना दिए, एलिवेटेड रोड बना दिया. लेकिन जो प्रॉब्लम हमको आ रही है वो ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो रोड को इस्तेमाल कर रहा है उसको हमने कभी नहीं ट्रेन किया. मेरी ढींगरा साहब से थोड़ी सी मुलाकात हो रही थी जब हम लोग यहाँ बाहर अंदर बैठे हुए थे टेंट में, और हमने यही कहा कि आदमी गाड़ी चलाना सीखता सोचता कि मैंने चलाना सीख गया, आई नो हाउ टू ड्राइव, पर उसको कभी ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में नहीं पता, उसको ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता, उसको ट्रैफिक रूल्स के बारे में नहीं पता. घर बैठ के लाइसेंस मिल जाता है या वो लाइसेंस को मैनिपुलेट कर लेता है, और वो जो उसका थॉट प्रोसेस है गाड़ी चलाते समय, वो एक्सीडेंट को प्रोबेबली है ना बढ़ावा दे रहा है. जब तक रोड पे चलने वाला आदमी, रोड को यूज करने वाला आदमी नहीं ट्रेन होगा, हम लोग इस समस्या से जूझते रहेंगे. एनफोर्समेंट इलाज नहीं है, इट्स नॉट अ रेमेडी कि हम है ना दंड कर लें 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 2500 रुपये हम लोगों से है ना इकट्ठा करते रहे. इट इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री. नो, मे बी what SP रूरल had said कि एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, ये 3 E's आर इम्पोर्टेंट. ये हम NPA की ट्रेनिंग से सीखते हुए आ रहे हैं, और लेकिन हम तीनों में स्ट्रगल करते हैं. एनफोर्समेंट, जब ये कहा जाती है, रजूआतें होती है मीटिंग्स में कि सर ट्रैफिक, तो बोलते सर आदमी नहीं है. आदमी आपके पास है, लेकिन अब विस्तार इतना बढ़ गया है, इतने क्रॉस रोड्स बन गए हैं, इतने एरियाज नए खुल गए, इतने हाईवेज खुल गए हैं कि आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको कम पड़ती है.
99 के अंदर जब मैं डीसीपी ट्रैफिक अहमदाबाद सिटी था, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, पूरे एसजी हाईवे पर एक भी पॉइंट नहीं था, नॉट अ सिंगल पॉइंट, एक भी ट्रैफिक का पॉइंट पूरे एसजी हाईवे के ऊपर था ही नहीं। जो पहला पॉइंट आया जब वो हाई कोर्ट जब बना, तब पहला हमने ट्रैफिक पॉइंट वहाँ लगाया 1999 के अंदर। और आज आप देखिए कि एसजी हाईवे हट के एक नई रिंग रोड बन गई है, अब उसके बाद भी एक नई और रिंग रोड बनने जा रही है। प्रॉब्लम वो नहीं है कि हम कितने आदमी करें, हम कितने आदमी लाए, कितने आदमी लगाए, प्रॉब्लम वो है आदमी के संग उन आदमियों को अपनी ड्यूटी करना भी सिखाना पड़ेगा। जो कई कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं वो ये भी आती हैं कि भाई पुलिस है लेकिन पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस इंटरवीन नहीं कर रही है। और एक आम आदमी तरह से अगर आप सोच के देखेंगे कि एक आम आदमी क्या सोचता है कि जब उसको पुलिस वाला रोकता है, उसको लगता है कि यार जबरदस्ती मेरे से है ना पैसे खंगारे जा रहे हैं। वो अपनी गलती कभी नहीं मानता है। आपके पास भी फ़ोन आते हैं, मेरे पास भी फ़ोन आता है ना। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा कि मैंने हेलमेट क्यों नहीं पहनी, मैं रॉन्ग साइड क्यों आ रहा हूँ। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। वो ये सोचेगा कि यार मेरे को ज़बरदस्ती पुलिस है ना परेशान कर रही है। वो इनिशिएटिव अच्छा है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कराएंगे, सिर्फ पुलिस की ट्रेनिंग नहीं करेंगे, पब्लिक की भी ट्रेनिंग करेंगे, पब्लिक वालों को भी हम एजुकेशन करेंगे। बट वो बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है कि पब्लिक के आदमी को आप यहाँ ला के 3 घंटे बैठाएं और 3 घंटे बैठा के आप उसको है ना ये सिखाएं कि भाई आपको रोड कैसे इस्तेमाल करनी है। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज। और ये एक्सपेरिमेंट दिल्ली पुलिस के द्वारा करने में आया कि जब उनको चालान करा जाता है, उनको चालान करते समय जब वो चालान भरने जाते हैं तो उनको वो 6 घंटे बैठा के और रोड सेफ्टी की वीडियोस दिखाई जाती थी कि तुम चालान तो बाद में भरो, पहले वहाँ बैठो हॉल में और 6 घंटे है ना अपना यहाँ टाइम निकालो। तो अगर हम लोग ये कर सकें, इसके अंदर लोगों को एजुकेट कर सकें, लोगों को ट्रेन कर सकें, उसके लिए अगेन सिर्फ पुलिस का ही रोल नहीं बनेगा, उसमें आरटीओ का भी रोल बनेगा। जो ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग स्कूल्स है, जो ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर लोग एडमिट होते हैं, उनको भी हमको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, उनसे भी हमारे को हेल्प लेनी पड़ेगी, जिससे कि ये कंपलसरी पार्ट हो जाए कि इतने दिन के आज या इतने दिन की ट्रेनिंग के बाद ही हम उसको एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल बनाएं। जो डेटा एनालिसिस, डेटा का आपने सेंटर बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डेटा की आज कोई कमी नहीं है। वी हैव मल्टीपल सोर्सेज कि जहाँ से डेटा आपको अवेलेबल हो जाता है। इनफैक्ट जब भी कोई रोड एक्सीडेंट होता है, हम लोग पूरा डेटा उस शीट के अंदर भरते हैं। और आई थिंक वो IDAR करके सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ये डेटा हम लोग फिल करते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी so much of captured data, and probably the state traffic branch has Om Prakash had mentioned that the state traffic branch has got a huge data repository. So it is very easy of CCTV cameras on the highways and on the roads. You know, capturing the data is not too difficult. With AI models available, आपको सिर्फ एक AI model बनाना है, which I'm sure someone would be able to do it. आपको सिर्फ एक AI मॉडल बनाना है, आपको वो डेटा कैप्चर करना है फ्रॉम दैट सोर्स, और आपको वो डेटा एनालिसिस करके आपको सब चीज़ें दे देगा। प्रोबेबली इट विल सजेस्ट ऑल्सो कि आपको उन पॉइंट पे क्या इंटरवेंशन करना है या किसका क्या रोल है। और अगर उसमें हम कुछ और अपनी केस डायरीज भी डाल दें तो प्रोबेबली वो केस डायरी से एनालिसिस करके भी दे देगा कि आपको इसमें और क्या एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। मतलब इट इज़ सो ईजी नाउ। सो मे बी the data center which you are planning, Om Prakash, probably would also incorporate these features, and we would try to make the best use of the technology that is now available, all of us. The road safety education, wonderful initiative. Again, you know, we probably had all, maybe Anupam would agree कि हमारे टाइम पे एक RSP चलती थी स्कूलों के अंदर। We had the road safety patrols in the school where the small kids from class 6 to 8 or class 6 to 9 they would be roped in और उनको रोड पे लाके और हम लोग इनको प्रैक्टिकली ये चीज़ें बताया करते थे। और ये डिस्कशन कि स्कूलों के अंदर ट्रैफिक एजुकेशन
होना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। आज से नहीं, आज से 30 साल से हम लोग सुन रहे हैं। प्लस फॉर रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट के खातपुरत मतलब भूमि पूजन के प्रोग्राम में उपस्थित अपना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और हम सबको मार्गदर्शन और गाइड करने के लिए मैं रिस्पेक्टेड डीजीपी सर राजू भार्गव सर से अहमदाबाद सीपी सर अनुपम सिंह गहलोत सर, अहमदाबाद रेंज राघवेंद्र वत्स सर, वत्स मैम, बिपिन आहिरे सर, डीडीओ श्री विदय खरे सर, होंडा ऑफिशियल्स, सभी एसपी सर, सभी ऑफिशियल, मैं सबका अहमदाबाद रूरल पुलिस टीम की वजह से थैंक यू ऑल वेरी मच। एंड हमें आशा है कि आप सबके मार्गदर्शन में और आप सबके गाइडेंस में हम फ्यूचर में इस नोबल इनिशिएटिव को बहुत आगे ले जाएंगे और हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन है 2030 में फेटल एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट्स को 50% कम करने में कामयाब रहेंगे। आई एम थैंक अगेन वेरी मच, थैंक यू।